ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ ہمارے اپنے اسٹیٹ سٹرکچر کے بنیادی مسائل میں سے یہ غالباً سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ جب آپ ملکی نظام کو مذہب کے تابع کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ایک اس لیے کہ ریلیجن ایک بلیف سسٹم ہے اور اسٹیٹ ملٹیپل بلیفز والے کروڑوں لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، اسی لیے یہ فارمولا کبھی کامیاب نہیں ہو پایا کہ ایک بلیف سسٹم کو کروڑوں لوگوں پر اپلائی کیا جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ پہلا یہ میرا ویڈیو رسپانس ہے فیصل وڑائچ صاحب کی کسی ویڈیو پہ، سلام ان کی خدمت میں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ سید محمد محمود صاحب کو بھی میں مینشن کرنا چاہوں گا، جنہوں نے مجھے یہ ای میل کیا یہ لنک کہ اس میں ایسی بات کہی گئی ہے جس کا رسپانس ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسی انفارمیشن آتی ہے، بائی آل مینز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا رسپانس وارنٹڈ ہے، تو آپ مجھ کو وہ ای میل بھیج سکتے ہیں۔ سرٹنلی وی ول لک انٹو اٹ۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کی طرف۔ جو فیصل وڑائچ صاحب نے یہاں پہ شروع میں جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ اور چیز ہے، جو ریلیجن ہے وہ بلیف سسٹم ہے، اور بلیف سسٹم کو آپ سب پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ وہ باتیں آپ نے سن لی۔ اب دو فنڈامنٹل پریمیسز ہیں یہاں سے جس پہ انہوں نے اس بات کو بیس کیا ہے۔ پہلی یہ کہ سارے بلیف سسٹمز ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں، اور دوسری یہ کہ بلیف سسٹم پہ اگر آپ ایک ملک کو چلائیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب نے اس بلیف سسٹم کو ماننا ہے۔ یہ باتیں ضروری نہیں ہے کہ دونوں ٹھیک ہوں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسی پرزمپشن پہ، اس پرزمپشن کو جو کہ ضروری نہیں کہ ٹھیک ہو، انہوں نے اس پرزمپشن کو یا سیٹ آف پرزمپشنز کو نیسیسریلی ٹھیک قرار دے کر آگے اپنا جو فتویٰ ہے وہ دیا ہے۔ ناؤ لیٹ می ایکسپلین اس میں پرابلم کیا ہے۔ اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جو بلیف سسٹم ہوتا ہے وہ سب پہ اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ ویل سیکولرزم، پرٹیکولرلی جو لیفٹ کا سیکولرزم ہے جو فیصل وڑائچ صاحب کا ہے، وہ تو یہ تجربات کر چکے ہیں۔ Now you can say کہ ایتھیزم بلیف سسٹم نہیں ہے، وہ ایک اور بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ لیکن جب سوویت یونین نے اسلام بین کیا سینٹرل ایشیا میں، ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، قرآن پڑھنے پہ پابندی لگا دی سارا، تو وہ تو ایگزیکٹلی یہی کر رہے تھے کہ اپنا سسٹم انہوں نے اکراس دا بورڈ، یہ میں نے آپ کو مسلمانوں کی بات بتائی ہے، سیم ایز کرسچنز پہ بھی وہی ظلم کیا، مسلمانوں پہ بھی وہی ظلم کیا۔ تو فیصل وڑائچ صاحب جس آئیڈیا کو پاکستان میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں تو ایکچولی یہی پرابلم ہے جن کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ then one has to ask کہ اگر یہ وہی ہسٹری ہے، وہ بلری گور وائلنس سے بھری ہوئی ہسٹری جس کے آپ حق میں ہیں، تو اس کو یوز کرتے ہوئے آپ ریلیجن پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو یہ سیکولرزم کا پرابلم ہمیں نظر آتا ہے۔ میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دی ہے، اکراس دا بورڈ آپ کو بہت سی ایگزامپلس اور بھی مل جائیں گی۔ لیکن جو دوسری پرزمپشن ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ انہوں نے اوور سمپلیفائی کر دیا کہ سارے کے سارے بلیف سسٹمز ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں۔ ناؤ پروفیسر روئے کاساگرانڈا جو کہ ماہر ہیں ہسٹری کے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیر واز اے ٹائم کہ کرسچینٹی جو عیسائی دنیا ہے اس کی 60% پاپولیشن ان ون ٹائم مسلم رول کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ تو ان کا یہ کہنا کہ یہ کبھی بھی تجربہ کامیاب نہیں ہوا کہ آپ ایک بلیف سسٹم پہ ایک ریاست کو بنائیں اور وہ کامیاب ہو جائے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رائز آف سیکولرزم سے پہلے ساری ہی ریاستیں کسی نہ کسی مذہب پہ ہوتی تھیں، اور وہ کامیاب بھی ہوتی تھیں، ناکام بھی ہوتی تھیں۔ یعنی کہ جتنی کامیاب ہوئی ہیں اس میں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ سیکولر ہو گئی تھی تو وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ یہ جو اگزامپل ہے کہ جو مسلم اتنا امپائر اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ عیسائی دنیا کا 60% مسلمانوں کے رول کے تحت رہ رہا تھا، پوری آزادی کے ساتھ رہ رہا تھا، پورا ان کا اپنا سیٹ اپ تھا، اس کے اندر کوئی اسٹیٹ کی انٹرفیئرنس نہیں تھی، کیونکہ اسلام میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ جو مدینہ اکورڈز ہیں جس پہ ریاست مدینہ بنی ہے، اس کے اندر جو وہاں پہ جیوز رہتے تھے ان کو پوری آزادی تھی کہ وہ اپنے معاملات میں آزاد ہیں، کیونکہ بلیف سسٹم کا مطلب یہ نہیں ہے اسلامی ریاست میں کہ آپ جو نان مسلمز ہیں ان کی عبادتوں پہ پابندی لگا دیں گے، ان کو زبردستی نماز پڑھانا شروع کر دیں گے، ان کو سارا نو سر، یہ آپ کے سیکولرزم نے کیا ہے کہ وہ کوئی چرچ نہیں جا سکتا، کوئی مسجد بھی نہیں جا سکتا، پادری مار دو، مولوی مار دو، دس از یور ہسٹری ناٹ آور ہسٹری۔ ہماری ہسٹری میں انسیڈنٹلی اگر کسی نے کیا ہے تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں۔ تو isn't this amazing کہ جس چیز کو آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں اگر مسلمانوں میں سے کسی نے کی تو ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، لیکن آپ کے اپنے لوگوں نے جو کیا آپ ان کو ہیرو سمجھتے ہیں۔ دس از فنڈامنٹلی فلوڈ آرگومنٹ جو فیصل وڑائچ صاحب نے پیش کیا ہے، پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ڈیفینیٹلی یہ چلنے والا نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ناٹ۔ کیوں نہیں چلنے والا ہے؟ I'll explain that in a minute. Right now
ان کے دوسرے क्लिप की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ बेसिक प्रॉब्लम ये भी है कि मजहब की तशरीह एक ओपन फ्रेंचाइज बना दी गई है। कोई नहीं जानता कि किसकी तशरीह के मुताबिक किए गए फैसले हतमी फैसले होंगे, ठीक होंगे, और बाकी सब उनका इस्तदलाल, उनका रैशनल मान भी लेंगे। इससे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जिनकी मजहबी तशरीह नहीं मानी जाएगी उन्हें किस लॉजिक के तहत कायल किया जाएगा कि वो पुरम तौर पर अपनी तशरीह से दस्तबरदार हो जाएं और बंदूक ना उठाएं। अगेन एक ऐसी प्रिजम्पशन जिसकी कोई कोई उसके पीछे इल्मियत नहीं है कि जो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे आप उनको कैसे मनाएंगे, सबकी तशरीह अपनी अपनी होती है। आई विल अर्ज फैसल वड़ाइच साहब की पढ़े लिखे आदमी हैं, ये इस्लाम में रियासत के तस्वर को एक दफ़ा पढ़ लें कि वो है क्या। जब वो ऐसा करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इस्लाम में रियासत एक मुजतहिद की हैसियत रखती है, विच इज़ टू से कि ऐसा नहीं होगा कि सब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आएगी। फ्रैंकली अल्टरनेटिव मॉडल जो ये देना चाहते हैं सेकुलरिज्म का, अब आइदर सेकुलरिज्म में लोगों को इंटरप्रिटेशन की इजाज़त नहीं होगी या होगी। अगर इजाज़त नहीं होगी तो फिर वो मजहबी आज़ादियों वाला जो कहना सही चूरन वो यहाँ पे फ्लॉप हो जाता है, और अगर इजाज़त होगी तो मसला तो वही है जो आप कह रहे हैं कि इस्लामी मुल्क बनेगा या एक मजहबी मुल्क बनेगा योर टर्म, तो उसमें इंटरप्रिटेशंस अपनी अपनी हो गई हैं। क्योंकि इस्लामी रियासत तो इंटरप्रिटेशंस को रोकती ही नहीं है और कहती है जितनी मर्जी करो, कोई इशू नहीं है, दैट्स एंटायरली अप टू यू। लेकिन जो रियासत के मामलात हैं, रियासत बहसीत मुजतहिद उनको फोर्स करती है। सऊदी अरब में आज भी शिया कम्युनिटी रहती है, वो अपने मामलात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इसको प्रैक्टिकली पॉलिसी लेवल पे भी मुसलमान होना चाहिए, लेकिन रियासत ये नहीं करती है कि वो किसी से ज़कात ज़्यादा ले ले, किसी से कम ले ले, किसी से ऐसे कर ले, किसी से वैसे कर ले। आप डिक्लेयर करें कि आपकी फ़िक़्ह में वो क्या मामलात हैं, यू आर फाइन। रियासत अपने मामलात चलाती है रिलीजियस बेस के ऊपर और उस पे सबका एग्रीमेंट है, और ये इतना भोंडा किस्म का एक एग्रीमेंट है। आई एम श्योर फैसल बड़ाई साहब की अपनी तो आर्गूमेंट नहीं है, इससे पहले बहुत अरसे से ये चली आ रही हैं जब से पाकिस्तान बना है। भाई हमारे जो 22 नकात हैं वो इसीलिए साइन किए गए थे अर्ली 50s में, जो कि दोबारा रिवाइव हुए 2011 में रीसर्फेस हुए हैं, कि हर मसलक साइन करके दे रहा है कि आप ये इम्प्लीमेंट कर दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आप हमारे पीछे ना छुपें कि हमारी ये तशरीह होगी वो तशरीह होगी। पता नहीं वेंट ऑन टू से कि जो इससे डिसएग्री करेंगे आप कैसे उनको कायल करेंगे कि वो बंदूक ना उठाएं। दिस इज सच अ डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट फ्रॉम सच एन एजुकेटेड पर्सन कि वो ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि जिसकी बात नहीं मानी जाएगी वो गन उठा लेगा। भाई ये आपका तरीक़ाकार है, ये रेड आर्मी वाइट आर्मी ये उनका तरीक़ाकार है। हमारी नहीं मानी, मेंशविक की लड़ाई हो रही है बोल्शविक से, वो उसकी हो रही है उससे, दैट इज़ नॉट अस। हम नहीं करते। आप पाकिस्तान के अंदर देख लें कितने मसालिक हैं, अपने अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रियासत ये तो नहीं कि एक मसलक उठ के तो नहीं कहता कि मेरे वाले तुमने इम्पोज करना है, मैं दूसरे वाले को नहीं मानूंगा। ऐसा तो कोई नहीं करता। आप रमज़ान में देख लें, क्या इस्लाम में जितने मसालिक हैं रमज़ान के महीने में सारे एक ही वक्त रोज़ा रखते हैं, एक ही वक्त अफ्तार करते हैं? तो उनकी अपनी अपनी आज़ादी है। कभी आपने सुना कि नहीं अहले तशीह मसलक है वो 10 मिनट बाद अफ्तार नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कह दिया है? इन आर्गूमेंट्स में जान नहीं है। ये सिर्फ फजूल स्वीपिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ना ही पाकिस्तान के लोग ऐसा चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान के लोगों का ये तकाजा है। और वो जो 22 नकात हैं वो इसलिए हैं, और सारे मसालिक ने उस पर साइन किए हुए हैं, 30 से ज़्यादा उलमा ने साइन किए हुए हैं। हर मसलक की रिप्रेजेंटेशन है कि दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, आप ये इम्प्लीमेंट कर दें, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आइन के दिबाचे में करारदाद मकासद में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पाकिस्तान बनाने वाले लिख चुके हैं कि रियासत के फैसलों में खुदाई अहकामात हतमी हैसियत रखेंगे, अवामी राय से ज्यादा अहमियत हासिल होगी उन्हें। जब करारदाद मकासद और ये सब तहरीर लिखी जा रही थी तो बहुत से लोग पुकार पुकार कर कह रहे थे कि अगर आपने फैसला साजी का इख्तियार अवाम के अलावा किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को दे दिया तो इसकी तशरीह करने वाले ही पाकिस्तान के असल हाकिम बनेंगे, चाहे मुंह की ताकतवर मुल्लाई जत्था हो या रियासत पर काबिज कोई भी डिक्टेटर जो मुल्ला का किरदार अपने हाथ में ले ले। दोनों सूरतों में अवाम की राय माइनस होगी और टेक्स्ट की तशरीह ही हुकूमत करेगी। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट आर्गूमेंट्स हमारे सेकुलर्स के लिए। इस पे हसनैन बिन सजाद ने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा, 3 सवाल उठाए, चौथा उसमें मैंने ऐड किया। लेकिन उससे पहले ये हुआ कि वो जो गुफ्तगू है वो चल रही थी डॉक्टर तैमूर रहमान साहब से, तो उन्होंने अपने क्लासिकल तैमूरियन फैशन में हसनैन को ब्लॉक कर दिया। मुझे तो पहले ही किया हुआ था कि गुफ्तगू का रास्ता ही बंद हो जाए। सो हियर इज़ द प्रॉब्लम। अगर आप ये कहते हैं कि अवाम की बात नहीं मानी जाएगी, तो आप क्या करेंगे उस वक्त जब अवाम ये कहे कि हमें शरीयत चाहिए? देन व्हाट?
वुड यू कंसीड? आप सेकुलरिज्म की कुर्बानी देंगे? फिर सेकुलरिज्म में क्या ये ओपननेस है? ऑब्वियसली नॉट। तो हमने तो जो सर्वे पाकिस्तान में देखे हैं वो सारे ही, एक वास्ट मेजॉरिटी लोगों की हमेशा यही कहती है कि हमें एक शरिया ड्रिवन कंट्री चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट को ना माना जाए इसलिए कि अवाम की जो जो उनके मुतालबे हैं, अवाम की विल, उनकी ख्वाहिशात रिफ़्लेक्ट नहीं करेंगी। लेकिन अवाम की ख्वाहिशात ही अगर ये हों कि इस मुल्क में जो हमारा सेक्रेड स्क्रिप्चर है उसकी रोशनी में बनाए हुए असूल कवानीन वो अप्लाई करें, तो फिर क्या आप उनको डिनाई कर देंगे? बिकॉज फैसल वड़ाइच साहब, एंड फॉर दैट मैटर एवरी अदर सेकुलर इन पाकिस्तान, यू कांट हैव इट बोथ वेज। आइदर आप लोगों की राय का एहतराम करेंगे या नहीं करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम लोगों की राय का एहतराम करेंगे उस वक्त तक जब तक सेकुलरिज्म का केस मजबूत होता है। जहाँ से लोग इफ़ दे टर्न ऑन सेकुलरिज्म इटसेल्फ, तो फिर हम लोगों की बात को नहीं मानेंगे, ये नहीं हो सकता। सो पाकिस्तान के केस में, चूंकि आपने पाकिस्तान के केस में ये बातें कर रहे हैं, तो फिर तो सूरत हाल बड़ी क्लियर है, और वो ये है कि पाकिस्तान के केस में सेकुलरिज्म की कोई गुंजाइश नहीं बनती। ना ये इस मकसद के लिए मुल्क बना था, ना ही इसको लोगों ने कभी पसंद किया है। आज भी लोग इस सिस्टम से तंग हैं, वो चाहते हैं। हमारा ये काम है कि हम उनकी इस चाहत को जो मुल्क के अंदर सियासत है उसमें ट्रांसलेट करें कि जब इलेक्शंस वगैरह आएँ तो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो। लेकिन जो सर्वेज़ हैं, आप उनको क्लियरली देख सकते हैं कि लोग तो ये चाहते हैं कि शरीयत आनी चाहिए, यहाँ पे सिस्टम आना चाहिए। आपकी मर्ज़ी ये है कि सेकुलरिज्म हो जाए और सब लोग उसको एक्सेप्ट भी कर लें। इन दिस केस आपने ये अस्यूम किया हुआ है कि लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये 3 हिस्से आपके वीडियो के मैंने चलाए हैं, जिसमें जो प्रेज़ेंट मैंने केस किया है आपकी खिदमत में रखा है फैसल वड़ाइच साहब, और जो आम आवाम है उनकी खिदमत में रखा है कि आपने जो फंडामेंटल प्रेमिसेस इकट्ठी की हैं वो सारी की सारी फ्लॉड हैं, वो सारी की सारी गलत हैं। देयरफॉर जो नतीजे आपने अखज़ किए हैं उसका नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस ये है, इनेविटेबल कॉन्सिक्वेंस है कि वो भी गलत है। बहरहाल ये मेरी क्रिटिक ख़त्म होती है यहाँ पे। मैंने आप पे कुछ मज़ीद वीडियोस और भी बनानी हैं, क्योंकि आप एट टाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं कोई तल्ख़ बात नहीं करना चाहता। ये मेरा पहला आपके साथ एक रिस्पॉन्स है, बट समटाइम्स इट बिकम्स बिट डिफ़िकल्ट टू फॉलो कि एक तरफ सैलाब पाकिस्तान इंडिया के अंदर आए हुए हैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं कि रेड क्लिफ की बाउंड्री गई इसलिए कि पांचों दरियाओं में पानी है। रियली ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है कि जिसको आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले रहे हैं कि मैं अपना जो टू नेशंस थ्योरी है उसके खिलाफ बात कर दूं। सैलाब है, लोग मर रहे हैं, कोई बात नहीं। टू नेशंस थ्योरी तो वो तो डिफीट हो रही है। खैर, आई थिंक यू आर अ बेटर मैन। इस चीज़ पे मैं आपको जज नहीं करूँगा, सिर्फ आपके नोटिस में ला रहा हूँ कि यू आर बेटर देन दिस। आप इससे बेहतर बातें कर सकते हैं। एंड देन वी हैव द इवोल्यूशन, डार्विनिज्म, जिस पे आपने वीडियो बनाए हैं, उस पे मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, बिकॉज जो चीज़ें आपने कही हैं फ्रैंकली दे डोंट मेक एनी सेंस। एंड आप पढ़े लिखे आदमी हैं, उम्मीद है आप चैलेंज, रिस्पेक्टफुल एकेडमिक चैलेंज अगर आपको किया जाए तो आप उसको माइंड नहीं करेंगे। एटलीस्ट पब्लिक का ये हक है कि दोनों तरफ की इन्फॉर्मेशन के पास आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।